Hello friends, in this video I am going to talk about personal budget, why personal budget is important and six key important steps to prepare personal budget. So you can prepare your own personal budget even though you are a non-finance person, before starting the next financial year, that is financial year 23-24. So let us begin. Myself Prashant Aparaj, and I am on this mission to educate people on the aspect of personal finance, taxation, wealth creation, and financial freedom. So let us begin with the topic. Why personal budget is important? So personal budget is important to have the financial clarity, because clarity creates the conviction, right? Whenever we have clarity in our life, then we take the action with conviction. So that's the reason budget is important for getting the right amount of clarity in terms of our finances. Next one is better control on the finances. Once you have the budget in place, then you can manage and control your finances properly, and that is the key aspect of preparing the budget. The next one is informed decisions, because बहुत बार लोग क्या हो जाते हैं, many a time people are taking the decisions randomly. So instead of that, you can take the decision by way of considering your own financial numbers. मतलब आपके आप numbers ही देख के आप decision ले सकते हो, informed decision ले सकते हो. So that's the reason budget is important. So now let us move on to the next 6 steps. So these are the 6 steps wherein you can prepare your budget and you can be in control of your finances. So first point is calculate income from all the sources. So which are the different sources? So it could be a business income, it could be a salary income, it could be investment income like interest, capital gain, dividend. और अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी रेंट पे देके रेंट आ रहा है, तो रेंटल इनकम भी आपका इनकम हो जाएगा. एंड एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, राइट, लाइक गोल्ड बॉन्ड या कोई टैक्स फ्री आरबीआई बॉन्ड, उनसे अगर कुछ इनकम आता है तो वो सारे इनकम, पीपीएफ से अगर इंटरेस्ट आता है तो वो सारा आपका अदर सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट में चले जाएगा, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, कि किधर किधर से हमको पैसा आने वाला है, राइट, उसका हम एक लिस्ट बना देंगे. सेकेंड स्टेप इज डिसाइड योर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस, टॉप 10 और 12 कैटेगरीज, कि जिसमें आप मोस्टली आपका एक्सपेंसेस स्पेंड कर रहे हो, अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, दैट वी नीड टू डिफाइन. एंड ये 10 या 12 कैटेगरीज डिफाइन करने से क्या होगा, वी विल गेट द एग्जैक्ट क्लैरिटी कि वेयर वी आर स्पेंडिंग आवर मनी, कि किधर हम अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं. एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक यू कैन प्लान योर फाइनेंसेस, कि अपना एग्जैक्टली पैसा किधर खर्च हो रहा है. एंड देन with the awareness you can either cut down the expenses, and in case if it is ample necessary, then you may spend the amount on that category of expenses. So these are certain broad categories. It could be a grocery and food, utility bill like telephone, mobile, electricity, gas bill. If you are staying in a rented apartment, then rent of the house, maintenance of the house. Then in case if you are staying in your own house and house loan hai, to हाउस ईएमआई, कार लोन ईएमआई और अदर लोन ईएमआई, मे बी पर्सनल लोन है या मे बी एनी अदर लोन ईएमआई है, तो वो सारे ईएमआई इधर आ जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस. दीज आर द 3 इंश्योरेंस विच आर नेसेसरी. वन इज हाउस इंश्योरेंस, सेकंड वन इज मेडिकल इंश्योरेंस, एंड थर्ड वन इज term life insurance. So in case if you are spending the amount on this insurance, then you have to categorize it, you have to list it out. Then मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी आपके ऊपर या आपके पेरेंट्स के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है. एजुकेशनल एक्सपेंसेस, व्हीकल एक्सपेंसेस लाइक पेट्रोल, रिपेयर एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मान लो अपैरल्स, क्लोथिंग, लग्जरी, या मान लो ट्रैवल, गैजेट बाइंग, वो सारे ये एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. एंड रेस्ट ऑल कैटेगरीज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू डिसाइड द कैटेगरीज एंड वी हैव टू लिस्ट डाउन द एक्सपेंसेस, कि कितना हम ब्रॉड बाय एंड लार्ज खर्चा करते हैं हर एक कैटेगरी में, राइट. एंड ये सब करने के लिए यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 or 2 minutes, बिकॉज अगर आप अकाउंट खोल के देखना चाहोगे तो यू मे डेफर दिस होल एक्सरसाइज. मतलब क्या हो जाता है ना, बहुत बार ये चीज मेरे पास अभी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, और वो बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड के चक्कर करने के चक्कर में हम लोग 1, 2, 3 हफ्ते निकाल देते हैं, राइट.
एंड ये बजट वाला एक्सरसाइज ऐसे ही पड़ा रहता है. सो दैट्स द रीजन यू शुड नॉट स्पेंड मोर ऑफ अ टाइम ऑन डिसाइडिंग द ब्रॉड कैटेगरीज, एंड मोर और लेस अपने को जो खर्चा होता है वो हमको ध्यान रहता ही है. तो वो जस्ट पेन एंड पेपर लेके या एक्सेल स्प्रेडशीट लेके यू हैव टू जस्ट डॉक्यूमेंट इट. देन नेक्स्ट वन इज चेक योर ओन गोल्स. मतलब अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में कौन से ऐसे गोल्स है. इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म गोल और इट कुड बी अ लॉन्ग टर्म गोल, राइट. सो शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है कि इट कुड बी अ इमरजेंसी फंड, 3 या 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड आपको अलोकेट करके रखना है. सो वो हो सकता है. या मान लो कोई ट्यूशन फीस आपको भरना है बच्चे का, तो वो इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल में हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम. मतलब जैसे मैं अभी ये वाले टॉपिक पे बहुत दफे बात करता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना लाइफ में बहुत जरूरी है. एंड फॉर दैट मैटर वी नीड टू हैव ऑल सोर्स ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग इनकम, राइट. एंड वी नीड टू इन्वेस्ट आवर मनी wisely to have the financial freedom. So you could be having your financial freedom goal, educational goal, buying a house could be a goal, buying a car could be a goal, or any other goal, right, which may have into your own personal life. तो अपने को अपना गोल डिसाइड करना है, बिकॉज एक बार गोल्स एंड एस्पिरेशंस डिसाइड हो जाते हैं. ट्रैवल गोल हो सकता है, राइट, किधर ट्रैवल करना है, मे बी विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो ट्रैवल गोल भी हो सकते हैं. एंड जब हम हमारा अपना अलाइंड लाइफ, जो अपना गोल्स एंड एस्पिरेशंस को कंसिडर करके जीते हैं, एंड अपना अगर उसको हम बजट को भी अपने गोल को अलाइन कर दे, तो क्या हो जाएगा, वी विल बी एबल टू अटेन मोर एंड मोर गोल फ्रॉम आवर चेकलिस्ट. The next one is make a plan and priorities, because money is the scarce resource. Money and time कभी अपने लाइफ में ऐसे होगा नहीं, अरे नहीं यार बहुत है और हम अभी जो मन मर्जी आए वो करते रहे, वैसे होगा नहीं. मनी इज द स्केर्स रिसोर्स एंड वी हैव टू, अगर स्केर्स नहीं भी है, इन केस इफ you are having abundant money into your life, then still also we have to manage it properly so that we can invest that money into some other good investment opportunities and we can earn lot of investing income out of it. So for that matter we need to make a plan and we have to prioritize the thing. मतलब किस पे खर्चा करना है, किस पे नहीं करना है, वो हमको well before hand decide करना है, right. Then next one is, sorry here focus हो गया, एक मिनट, fold note. The next one is adjust your spending to the budget. मतलब आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्पेंड करना है, और ये एक डिसिप्लिन है, राइट. लाइफ में अगर अपने को फाइनेंशियल कंट्रोल या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है या अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल लाना है ना, तो अपने को एक टाइम डिसिप्लिन एंड मनी डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, राइट. सो इन केस अगर आपने आपका बाय एंड लार्ज कैटेगरीज में बजट डिसाइड करके रखा हुआ है, then before spending any money you have to think that is it necessary or is it necessary now, right. And based on the budget you have to take that decision. Then the last point is step number 6, which most of the people fail to take, is review your budget regularly. अपने को अपना बजट रेगुलरली रिव्यू करना है so that we are aligned with our budget, right. And ये बजट से अलाइन, बजट कितने टाइम में रिव्यू करना है, it could be once in a month, and basically you can have a short review of your finances, because ये मैंने मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि मैं एवरी वीक एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर अपने फाइनेंसेस पे कितना आया है या कितना आना है और कितना मुझे स्पेंड करना है उस पर मैं स्पेंड करता हूँ. एंड इट इज एब्सोल्युटली अ गुड वेल्दी हैबिट टू ट्रैक योर फाइनेंसेस ऑन अ क्वार्टर, ऑन अ वीकली बेसिस. एक दिन अपना कोई भी डिसाइड करके, मे बी फ्राइडे, अपना सैटरडे स्टार्ट होने के पहले आप अगर डिसाइड करो तो आपको मेजर कुछ भी खर्चा करने के पहले आपको अवेयरनेस आ जाए. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, एंड दिस टूल्स और दिस स्टेप्स यू कैन यूज इट फॉर योर प्रोफेशनल बजट एज वेल. एंड व्हाट विल चेंज इज the broad categories of expenses, your income, in terms of your professional budget you have to calculate all your incomes related to your profession, related to your business, and various categories of revenue budget you have to make it. And the next one is the broad categories of expenses, 10 or 12 or 15 categories of expenses you need to decide. And expenditure may be in terms of professional budget or business budget,
इट कुड बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इट कुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब अगर आप मान लो कोई एसेट बाय कर रहे हो तो इट कुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. अगर आप मान लो रेगुलर रूटीन वाला खर्चा कर रहे हो जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर ही होने वाला है तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो ये स्टेप नंबर 1, 2 एंड स्टेप नंबर 3 चेंज हो जाएगा. रेस्ट ऑल थिंग्स विल रिमेन सेम. स्टेप नंबर 3 इज दैट इज द गोल ऑफ द बिजनेस कुड बी डिफरेंट. कि ये साल में आपको स्टेबिलिटी लाना है बिजनेस में, या आपको एक्सपांशन मोड में जाना है, या मान लो कुछ न्यू हायर या न्यू रिक्रूट करना है, या कुछ नया मशीनरी बाय करना है. सो दैट कुड बी योर गोल, राइट. सो वो आपको डिसाइड करना है. So I hope I have added enough clarity in terms of how to make a personal budget. In case if you want a spreadsheet, for calculation of budget, do let me know in the message box, and I will revert to that. I'll revert with the Excel ready template on the personal budget. Thank you so much. In case if you like this video, then please do subscribe to this video and do share this video with your friends and your relatives. Thank you so much.